Good morning, students. I hope that you are able to understand the chapter number 1. And in today's class, we are beginning with chapter number 2. Dear students, in the challenge of nation building, which we have covered in the last chapter, it was accompanied by the challenge of instituting democratic politics. तो हम जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज था जिसके बारे में हमने पढ़ा, वो था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इस नए चैप्टर में हमें एक और चीज़ पढ़नी है। जो सेकंड चैलेंज था वो था भारत में लोकतंत्र की स्थापना। Thus, the electoral competition among the different political parties began immediately after the independence. आज़ादी के तुरंत बाद भारत की जो विभिन्न राजनीतिक दल थे उनमें भारतीय राजनीति को लेकर उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। In this chapter, we look at the first decade of electoral politics in order to understand the establishment of a system of free and fair election. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह फ्री और फेयर मतलब एक स्वतंत्र चुनाव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हाउ द कांग्रेस वाज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के तुरंत बाद किन आधारों पर कांग्रेस ने भारतीय राजनीति में अपना प्रथम स्थान बनाए रखा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि भारत में जो ओपोजिशन पार्टी है उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, हाउ द ओपोजिशन पार्टीज वर इमर्ज इन द कंट्री एंड व्हाट वर देयर पॉलिसीज। So these are the three basic things which we are going to study. I think you all are able to get me whatsoever I am teaching to you. मैंने शुरू में ही बात की थी चैप्टर 1 में कि immediately after the independence India has to face 3 types of challenges, जिसमें सबसे पहला चैलेंज क्या था, द चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। Now you have the idea of difficult circumstances in which independent India was born. You have come to know about the serious challenge of nation building, and it was being faced by India in the beginning. शुरुआत में ही राष्ट्र निर्माण भारत के सामने पहली चुनौती था। India faced such serious challenges, but these type of challenges were faced by other countries as well. तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था कि भारत पहला देश है जो इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरे देश जो उसी वक्त आज़ाद हुए उनके सामने भी यही चुनौती थी। बट दे डिसाइडेड that their country couldn't afford to have democracy. They said that the national unity was the first priority and democracy will introduce difference and conflicts. So बहुत सारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे they were of the view कि उनका देश इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता और उनके सामने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की परिस्थितियां भी नहीं थी। So in those countries they have decided कि they will establish democracy later on, आने वाले समय में वो करेंगे। It took various forms. In some countries nominal democracy was established, but there was the effective control of one leader, one country, one party, and the rule directly by army. In some countries non-democratic regime was started. उन्होंने democracy establish ही नहीं की, and they promised their people that they will restore democracy very soon. But once they established themselves, it was difficult to dislodge them. यानी जब एक तरह की व्यवस्था बन गई तो उसे हटाना हमेशा के लिए जरूरी या इजी नहीं था। But the condition in India was not very different. We were also facing the same problems which the other countries were facing.
But the leaders of newly independent India decided to take the more difficult path. और शुरू में ही जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया जो है वो इजी रास्ते के बजाय टफ वे तैयार करेगा, और इसका मतलब ये था कि दे वर रिलेक्टेंट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एंड एनी अदर पार्ट वुड हैव बीन सरप्राइजिंग. You already know that during the freedom struggle it was deeply committed to the idea of democracy. ये बात बिल्कुल तय थी, आज़ादी के तुरंत बाद भारत लोकतंत्र हो जाएगा. And our leaders were also conscious of the critical role of politics in any democracy, but they didn't see politics as a problem. They saw it as a way of solving the problems. तो ऑफ कोर्स दूसरे देशों के नेताओं की तरह जो भारतीय नेता थे उन्होंने राजनीति को एक समस्या नहीं माना, बल्कि उन्होंने राजनीति को बहुत सी समस्याओं का समाधान माना. So they want that society need to decide how it will govern and regulate itself. There are always different policies and alternatives to choose from. There is a way to resolve the problem, and democratic politics is the answer of all the question. While the competition and power are the two most visible things about politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing the public interest. So जो लीडर्स थे उनको लगता था कि भारत में लोकतंत्र ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान है. हालांकि जो लोकतंत्र है उसमें कुछ लोगों को शक्ति मिलती है, पावर मिल जाती है, दे मे मिस यूज़ द पावर, लेकिन it was the only way by which the people can represent themselves. So this is the route our leader decided to take. Dear students, last year when you were in class 11th, then you have studied that how constitution was being made. आपने पढ़ा था कि संविधान किस तरह बना. So one thing must be remembered by you, that our constitution was ready and signed on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. ये साइन हो गया था 26 जनवरी 1949 को ही, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को. और ये स्टोरी शायद आपको याद होगी, बिकॉज 26 जनवरी 1930 से ही इंडिया अपना फ्रीडम डे मनाता आ रहा था. सो एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट. इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल अ फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. और 26 जनवरी 1950 के बाद ये डिसाइड किया गया कि अब भारत जो है उसे एक लोकतंत्रात्मक सरकार चलाएगी. सो उसके लिए क्या होना चाहिए था? इलेक्शन कमीशन टू बी एस्टैब्लिश्ड, और भारत ने अपना फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बनाया, एंड द नेम ऑफ द पर्सन वाज सुकुमार सेन. ही बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड it was decided that country's first general election were expected sometime in 1950. और शुरुआत में लग रहा था कि जो भारत के आम चुनाव हैं वो 1950 में कराए जा सकते हैं, लेकिन there were certain challenges which the Indian government have faced. और हमारी सरकार को उस समय बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. So what were those challenges? So I am going to explain to you those challenges. The Indian Election Commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. जो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम थी जो उनके सामने आई, उन्हें समझ में आ गया था कि भारतीय साइज़ के हिसाब से, जैसा भारत हमारा देश है उसके हिसाब से भारत में आम चुनाव कराना आसान नहीं था. Holding an election required a delimitation of drawing the boundaries of electoral constituency. यानी भारत में चुनाव कराने का पहला जो मुश्किल थी उनके सामने कि भारत को मतदाता क्षेत्रों में विभाजित किया जाना होगा. It also required preparing the electoral roll.
दूसरा क्या करना था, मतदाता सूचियां तैयार करना था, वोटर लिस्ट बनाना था। वोटर्स थे, लिखा नहीं था। तो भारत का चुनाव सिर्फ इस आधार पर नहीं मुश्किल था कि भारत में चुनाव कराया जा रहा है, बल्कि ये इसलिए भी मुश्किल था कि हमसे पहले इतने बड़ी संख्या में वोटर थे ही नहीं कहीं, और डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ का काम माना जाता था कि वही सिर्फ डेमोक्रेट्स है, वही एजुकेटेड हैं। इलेक्शन हैज, तो जो ओपोजिशन था, जो लूज़र था, उसने भी माना हुए थे, यानी भारत में निष्पक्ष चुनावों का कार्य हुआ था। तो ऑफ कोर्स जो ये माना जा रहा था कि इंडिया एक बहुत बड़ा गैम्बल करेगा इलेक्शन के नाम पर, वो गैम्बल नहीं हुआ। एवरीवन हैव एक्सेप्टेड द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग। इस तरह भारत जो है वो इलेक्शंस कराकर डेमोक्रेट बन गया। ऑब्जर्व आउटसाइड द इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड। India's general election of 1952 become a landmark in the history of democracy। में जो कांग्रेस थी उसका प्रचार क्यों रहा, उसने क्यों डोमिनेट किया। The result of first general election didn't surprise any। ज़्यादातर लोगों को पता ही था पहले आम चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। As it was already expected that Indian National Congress will win the election। सबको ही पता था कि कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। द कांग्रेस पार्टी एज इट वॉज पॉपुलरली नोन हैज़ इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। पहला जो बड़ा रीज़न था कांग्रेस के चुनाव जीतने का वो ये था कि कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस के पास विरासत थी, यानी एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे ज़्यादातर लोग जानते थे। इट वॉज द ओनली पार्टी देन टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वो पार्टी थी जिसका ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में फैला हुआ था। और तीसरा बड़ा रीज़न, देयर वॉज जवाहरलाल नेहरू हु वॉज इन द पार्टी। ही वॉज अ मोस्ट पॉपुलर एंड करिस्मेटिक लीडर। पार्टी को तीसरा बड़ा फ़ायदा जवाहरलाल नेहरू के होने से हुआ। वो बहुत करिश्माई नेता थे और लोग उनमें बहुत विश्वास करते थे। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर्ड थ्रू द कंट्री। और इस चुनाव के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया, पूरे देश में भ्रमण किया। तो लोग जो थे वो बहुत फैसिनेट थे जवाहरलाल नेहरू से, टू सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। व्हेन द फाइनल रिजल्ट वर डिक्लेयर एंड एक्सटेंडेड ऑफ द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस डिड सरप्राइज मैनी। The party won 364 out of 489 seats in first Lok Sabha and finished way ahead of any other challenger। उसके बाद से कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली। कांग्रेस को 364 सीटें मिली आउट ऑफ 489, एंड कांग्रेस के अलावा देयर वाज ओनली कम्युनिस्ट पार्टी जो आगे आई इन द टर्म्स एंड द सीट्स विन बाय 16, और कम्युनिस्ट पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिली। ऑल्दो इट वाज अ बिग गैप, बहुत बड़ा रास्ता था, बहुत बड़ा गैप था, लेकिन द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शंस के इमीडिएट बाद जो है वो भारत में राज्यों के चुनाव हुए। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शन एज वेल, और वहाँ भी कांग्रेस ने अपनी चुनौती कायम रखी, बड़ी उसे जीत मिली। इट वन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट त्रवणकोर कोचिन, जो कि केरला का हिस्सा था। त्रवणकोर कोचिन के अलावा कांग्रेस वॉज एबल टू मेक द गवर्नमेंट इन ऑल द स्टेट्स। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। So the party ruled all over the country at national and state level। पूरे हिंदुस्तान में सेंटर में भी कांग्रेस थी और सभी स्टेट्स में भी। As expected, Jawaharlal Nehru became the prime minister after the first general election।
अगर आप भारत के इलेक्टोरल मैप को उस टाइम देखें तो यू विल सी दैट कांग्रेस वॉज देयर इन द center government from 1952 to 62. In the second election also it win. In the third election it was also win. तो पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस was the only political party who was able to make the government. But in 1957 कांग्रेस lost election in Kerala. सिर्फ केरला में कांग्रेस जो है वो सरकार नहीं बना पाई एंड अ कोलिजन लेड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट, और सीपीआई के गठबंधन सरकार जो थी वो केरला में बटी। सो केरला में सीपीआई की सरकार बन गई। अपार्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस लाइक दिस द कांग्रेस कंट्रोल द नेशनल एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। The extent of the victory of the Congress was artificially boosted. लेकिन कांग्रेस की जो जीत थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भारत की चुनाव व्यवस्था थी। कांग्रेस विन 3 out of every 4 seats but it didn't given half of the votes. आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था 11th में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारत में चुनाव की जो व्यवस्था लागू है इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब ये था कि जितने भी सिस्टम्स थे फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी वोटर वोट करता है उसमें से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही पार्टी विजयी घोषित हो जाती है। तो हालांकि कांग्रेस वाज नॉट द पार्टी जो आधे से ज़्यादा भी वोट बटोर पाई हो, लेकिन क्योंकि वो हर जगह फर्स्ट थी तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे दे वर बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। Congress got only 45% of total votes, but it managed to win 74% of seats. The Socialist Party, which was considered the second largest party in the terms of votes, secured more than 10% of votes all over the country, but it couldn't win even the 3% of seats. तो 10 अगर आप वोटर को देखें तो सोशलिस्ट पार्टी लगभग 10% वोट जीत पाई लेकिन सीट्स नहीं जीत पाई। हाउ डिड दिस हैपन? सो ये मैंने आपको बताया ही है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम इन क्लास 11th. सो इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट्स देन अदर्स टेंड टू गेट द मच मोर देन इट्स द प्रोपोर्शनल शेयर। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस। और कांग्रेस को हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का बहुत बेनिफिट हुआ। इफ वी एड अप टू द वोट्स ऑफ ऑल द नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स इट वाज मोर देन द वोट्स ऑफ द कांग्रेस। अगर सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जो वोट्स मिले थे उन्हें जोड़ दिया जाता तो उनके वोट कांग्रेस से ज़्यादा थे। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वर डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, so the Congress was still way ahead of the opposition and managed to win. और इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया, वो ओपोजिशन से हमेशा थोड़ी सी आगे चली और अपना चुनाव जीतने में कामयाब हुई। सो आई होप दैट आपको ये दोनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मैं आज के लिए एक और छोटा सा टॉपिक उठाऊंगी, वो है चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग इन इंडिया। भारत में वोट डालने के विभिन्न तरीके क्या थे? आज तो आप सब जानते हैं ईवीएम्स चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट यू शुड नो दैट व्हाट वर द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। You all know that these days we are using EVMs, electronic voting machine, to record the votes preference. But that is not how it was started. In the first general election, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbols of the candidate. पहले क्या होता था? कैंडिडेट के इलेक्शन सिस्टम के लिए, इलेक्शन डालने के, वोट डालने के लिए हर कमरे में एक बॉक्स रखा जाता था।
Each voter was given a blank ballot paper which they had to drop into the box of the candidate they wanted to vote for. और जब वोटर वोट करने जाता था तो उसको मोहर लगा के एक ब्लैंक पेपर दे दिया जाता था. अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं और 4 डब्बे रखे हैं तो उनमें से किसी एक में वो अपनी वोट डाल के आ जाएगा. इसके लिए about 20 lakh steel boxes were used for the purpose. A presiding officer from Punjab described how he prepared the ballot boxes. कैसा होता था डब्बा जिसमें वोट डलता था. Each box has to have its candidate symbol. हर डब्बे पे उस चुनाव का चिन्ह लगाया जाता था, both inside and outside. उसके अंदर भी और बाहर भी. And कोशिश होती थी कि हर तरफ लगाया जाए. And it has to be displayed the name of the candidate in Urdu, Hindi and Punjabi. और उस वक्त 3 भाषाओं में, उर्दू में, हिंदी में और पंजाबी में नाम लिखा जाता था. The paper seal with the numerical description of the candidate signed by the presiding officer had to be inserted, is token frame and is windowed closed by the door and had to be fixed in a place of other and by the means of the wire. और उस कैंडिडेट के बारे में जो भी थी जानकारी वो सब उस बॉक्स पे लिख के रखते थे. All this had to be done one day previous on the one fixed of polling. और जहाँ चुनाव होते थे वहाँ पर पहले दिन इन डिब्बों को तैयार करके रखा जाता था. To fix symbols and label the boxes had first to be rubbed with the sandpaper or a piece of brick, and it took 5 hours for 6 persons. और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसको लगभग 6 घंटे लगते थे ये नए पेपर लगाने में, लिखने में और ये सब. आफ्टर द फर्स्ट 2 इलेक्शंस, और इस तरह से लगभग 2 बार इलेक्शंस हुए. दिस मैथड वॉज चेंज. नाउ द बैलेट पेपर कैरिड द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ ऑल कैंडिडेट एंड वोटर्स वॉज रिक्वायर्ड टू पुट अप अ स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वॉन्टेड टू वोट फॉर. दूसरा तरीका जो भारत में चुनाव के लिए लाया गया वो क्या था कि बैलेट पेपर बनाया गया. एक बड़े पेपर पर सभी जो इलेक्टर्स होते थे जिन्हें चुना जाना था उनके नाम और चुनाव चिन्ह लिखे जाते थे और जो वोटर है वो अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे स्टैंप लगाता था, मोहर लगा के आता था. एंड दिस मेथड वर्कड फॉर नियरली 40 ईयर्स. और पहले के बाद बैलेट बॉक्स के बाद दूसरा जो मेथड्स है वो लगभग 40 साल चला. Towards the end of 1990, the Election Commission started using EVM और तब से अब तक 1990 के चुनाव के बाद से भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम कर रहा है. प्रेजेंटली ऑल्सो आपने देखा ही होगा इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स भारत में, इंडिया में यूज़ होती है. तो ये क्या हैं? दीज वर कॉल्ड द 3 मेन इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ voting. So I hope that all of you got the topic. आपको समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं immediately after the class is over. मैसेज कर सकते हैं. छोटा सा असाइनमेंट दूंगी 3 क्वेश्चंस का which you have to do in your fair notebooks. I hope that all of you must be preparing your fair notebooks. Otherwise it is going to be really very difficult for you to do the pending work. अगर आप हमेशा पेंडिंग रखते जाएंगे तो इसको कवर अप करना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, इस बुक में पहले 6 चैप्टर्स वन आफ्टर अनदर है, बैक टू बैक. अगर आप फर्स्ट का काम कंप्लीट नहीं करोगे तो सेकंड समझ नहीं आएगा, सेकंड नहीं करोगे तो थर्ड नहीं आएगा. इस बुक के 6-7 चैप्टर बैक टू बैक हैं, एक साथ 1 to 6. सो कीप मैनेजिंग योर वर्क डेली. लगातार रोज़ काम कर लीजिए.
असाइनमेंट्स कंप्लीट रखिए. दैट विल हेल्प यू when you will learn, when you will start learning for the examination. Thank you. Have a nice day.